Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing and you all are stay at home. And our today's topic is unit dimension. This is single short video for NEET 2020-21 and this is a quick revision series for all the NEET aspirants. So, what is units? Why will we use units? Like I think that I will take a ball like this. Can I find the mass of this ball without using any units? No, because this ball has a particular mass which we can measure by unit like kg or grams. Take a cell. Can you tell me the voltage of this cell? What is the potential difference of the cell without using any units? No, you cannot do this, because to measuring the potential difference there have some units, that is volt. Now, so there have the first thing in this chapter, that is physical quantities. We know something about physical quantities. So what is the physical quantity? It helps to make the formula and equations. It helps to make the formulas and equations. And the physical quantities is those quantities which can be measured by an instrument. Like this, I will take a scale and measure a line. I measure this. I measure some of a road or some of a phone, like this. So this is the physical quantities. Now, how the physical quantities are made? The physical quantities are made the numerical value into its unit. जो उसका numerical value है into उसका जो unit है वो. यहाँ पे मैंने पिक्चर पे दे के रखा है कि physical quantities are made up with name or numerical value into its unit. Like, see on it, the ball has particular mass of 50 grams. Okay, so here the 50 is the numerical value and gram is the unit of this. Okay, now let's move on to the types of physical quantities. What are the physical quantities types? One is the fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity means which do not depend on any other physical quantities. They are fundamental physical quantities. Now, second one is derived physical quantities, which can be derived by the fundamental physical quantities. They are called as derived physical quantities. Now, third one is supplementary physical quantities, which is like this. You can measure an angle. That are the solid angle and plane angles. So these are the portion of supplementary physical quantities. Okay. Now we will read about the fundamental physical quantity in details. So fundamental physical quantity means, I have already said that, which do not depend on any other physical quantities. जिसको और कोई भी physical quantity की जरूरत नहीं है. Like this, that length is a single quantity, that is fundamental physical quantity. There are 7 fundamental physical quantities in physics. One is length, another is mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. Now I will already make a table here. There I will write here the physical quantities, here his SI units and the symbol of this. This is the very simple thing. So length, for length the SI unit of length is meter. For mass the SI unit is kilogram. For time this is second. For temperature this is Kelvin. For electric current that is ampere. For luminous intensity that is candela. And for amount of substance that is mole. Okay. Here I will also draw a picture like this. These are the symbol of this. That second, kilogram, mole, candela, Kelvin, ampere, meter. Okay. Now let's move on to the derived physical quantities, which are made of the fundamental physical quantities. Derived physical quantity क्या है? जो fundamental physical quantity से बनता है, that are the derived physical quantities. Like area, volume, velocity, force, work, acceleration, etc. So these are the example of derived physical quantities. Now we can derive all the physical quantities. That is area. What is area? Area is length into breadth. I will write here that is length, breadth. Length into breadth is make up a area. So for area, length square. Length square means, what is the unit of length? Meter. SI unit of length is meter. So we can write that meter square. So the unit of the area is meter square. For unit of volume, if you will take a cube, then what is its volume? That length into breadth into height. So what you can say? That is meter cube. For velocity, that is meters per second. Means length divided by time.
for force that is kg meter per second square, because force क्या होता है, देखो force is nothing but the mass into acceleration. So for mass kg and acceleration is meters per second square. So this also we call as Newton. Now for work, what is work? Force into displacement. What is force? Force, we have already read this. Force is Newton, and for displacement, that is meter, Newton into meter, so Newton meter, that also we call as joule. Now for acceleration, everyone can know this acceleration because you read on the class 9 that acceleration is velocity divided by time, or rate of change of velocity, like things. So here we can write that meter divided by time, because velocity is nothing but the displacement divided by time. So because of displacement means that is meter divided by time, second, and there have already a second, so we can write meters per second square. So impulse, what is impulse? Impulse is nothing but force into time. So ns, Newton second. Energy, for energy, that is also be joule. Is it a kinetic energy or is it a potential energy? Now we will do a question that the unit of thermal conductivity is, इस क्वेश्चन को नीट 2019 में पूछा गया था. सो फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट वाट पर मीटर पर केल्विन, जूल मीटर पर केल्विन, जूल पर मीटर पर केल्विन, वाट मीटर पर केल्विन. सो what is the unit of thermal conductivity? That is watt per meter per Kelvin. Watt meter per Kelvin, that is the unit of thermal conductivity. That is a simple question. Now let's move on to the supplementary physical quantity. Which are the supplementary physical quantities? Like a thing at an angle. Okay, there are angle and solid angle, plane angle and solid angle. I will write here plane. Plane angle means the angle which will be made in a 2D surface. Like you can see, I have already drawn here. That is that this theta will be, that is the radius of this r, like this. So that is the theta, and that is for 2D, that is supplementary physical quantity. The unit of this is radian. And for solid angle, like this, if I will take my hand like this, the angle between the angle between my two hands joining, this is this angle like this angle is known as solid angle, that is 3D. So that is straight for that is steradian. Now let's move on to the dimensions. What are the dimensions? Dimensions are the powers which the fundamental units are raised in the order to express derived of a quantity. So now we can know the dimensions of fundamental physical quantities, and we can derive all the physical quantities in the dimension of all the physical quantities. Like they have length. What is the dimension of length? That is L. I have already write here. And for mass, that is M. For time, that is T. For temperature, that is Kelvin, K. Only K in third bracket. And for electric current, that is ampere, means like A, and this. For temperature, like this, I have already write here. For luminous intensity, that is C. And for amount of substance, that is mole. Okay, so that's are the dimensions. But commonly कौन सा ज़्यादा यूज होता है? Commonly यूज होता है most commonly length, mass and time. किसी भी चीज को अगर हम ऐसे फट के देख लेते हैं और उसके अंदर मास और टाइम, मास, लेंथ और टाइम है, तो हम क्या करेंगे, उसको MLT के पावर में लिख देंगे. ओके, नाउ वी विल डू another two questions. Dimension of a stress. What is stress? Stress, everyone can know. What is stress? Okay, I have already derived here all the quantities. That what is the dimension of some derived physical quantities? उसके बाद हम दोनों जो क्वेश्चंस है वो करेंगे. पहले देख लेते हैं जो एरिया है. क्या है? एरिया है. What is area? That is meter square, means length square. So I will write here L square in third bracket, that is m0 L square to the power 0. So that is the dimension of area. For volume, that is L cube. Now for density, mass per volume, so I will write here m L cube t to the power 0, or you can also write ml cube. For velocity, that is displacement divided by time, it's the length by time, so that is m0 L to the power minus 1. For speed, m1 L1 to the power, same thing.
that have not m1, sorry, that l, that is l1, m0 l1 t to the power minus 1. For acceleration, change in velocity by time, that we know already know, that is m0 l1 t to the power minus 2. Okay, yes. Now for force is equals to mass into acceleration. So ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका डायमेंशन सबसे ज्यादा पूछ लेता है, मतलब डिराइव करने में कि बोले तो वर्क पूछेगा तो उसके अंदर भी फोर्स आता है, तो ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज ml to the power minus 2. आई थिंक आप सबको याद भी है. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोमेंटम. नाउ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. सो मास का हमें पता है m, एंड वेलोसिटी क्या हमने निकाला था, वेलोसिटी निकाला था m0 l to the power minus 1. तो यहाँ पे हो जाएगा m1 l1 to the power minus 1. ये हो गया. अब उसके बाद आता है वर्क. मैंने पहले ही बोला है वर्क पूछ सकता है. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स क्या है, ml to the power minus 2 इंटू l क्या होगा, ml square to the power minus 2. फॉर पावर में क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम. पावर में क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम. आप कितना वर्क डन कर रहे हो इस टाइम इंटरवल में, उसको तो बोला जाता है पावर. तो m पहले वर्क का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे बैठा दो, फिर टाइम का कर दो, फिर आपका निकल जाएगा m l square to the power minus 3. Now there are lots of terms like angular velocity. Angular velocity, that is v by r, that is omega, representing as omega. So l t into l means m0 l0, because l cancel out, so minus t. And frequency 1 by t, frequency is lambda 1 by t, m0 l0 to the power minus 1. So यहाँ से और भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि the dimension of angular velocity is similar to the dimension of frequency. Okay, now angular frequency 2 pi f, वो भी होगा t minus t to the power minus 1. Now angular acceleration, that is t to the power minus 1 by t, means t to the power minus 2. Now torque is force into d sin theta. So for d sin theta, force is ml to the power minus 2 into l, because d sin theta d, so we can write here ml square to the power minus 2. For angular momentum, that is mvr sin theta, so you can write m into 1, v means l by t into l. So मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, that is ml square to the power minus 1. for stress, for stress यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा गया ऑलरेडी, that is already in a question. कौन से ईयर का क्वेश्चन था, वो ईयर था 2020 में. ये एकदम नया सवाल है, 2020 में एकदम इजी सवाल है. पूछा गया स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर एरिया क्या है, ml to the power minus 2 by l square. So m1 l1 to the power minus 2. तो इसके अंदर m1 l1 to the power minus 2 कहाँ पर है, to the power minus 2. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Your option A is correct. Now the dimension of impulse is are equal to, चलो impulse तो हमने करा है, क्या impulse करा है ना, impulse कहाँ पर है, impulse हमने करा था, impulse का यूनिट करा था. चलो impulse से कर लेते हैं. चलो strain क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल. तो यहाँ पे डायमेंशन लेस अगर पूछा है विच क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिया है, उसके अंदर अगर स्ट्रेन दिया है तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी. अब इलेक्ट्रिक चार्ज I इंटू टी कर सकते हो, I इंटू टी, तो वहां क्या हो जाएगा आपके पास I इंटू टी, सो एम्पियर टी A1 AT कर सकते हो डायरेक्ट. कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV, तो कैपेसिटेंस C हो जाएगा क्या, Q बाई V हो जाएगा ना, तो A बाई T, तो ये आपका हो जाएगा A बाई T इंटू M L स्क्वायर A टू द पावर माइनस 2 इंटू टी क्यू ऊपर जाएगा, तो आप ऐसे करके आराम से निकाल सकते हो. अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. चलो बोला गया द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1996 में. इम्पल्स का जो डायमेंशन है, इम्पल्स का I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, ये तो इम्पल्स होता है ना. तो फोर्स क्या है, ml t to the power minus 2 इंटू टाइम t है ना, तो क्या हो जाएगा ml t to the power minus 1. अब देखो बोला गया मोमेंटम को पहले देखते हैं. मोमेंटम तो हमने पढ़ा होगा, p इज इक्वल टू mv, इसका डायमेंशन हमने करा होगा क्या, नहीं करा है. चलो p इज इक्वल टू mv होता है, m इंटू v. तो यहाँ पे m वेलोसिटी क्या है, l डिवाइडेड बाय t, तो ये तो डायमेंशन सेम है ना. तो मोमेंटम का आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हो. एंगुलर मोमेंटम का है नहीं, बिकॉज हमने एंगुलर मोमेंटम नहीं किया. चलो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा,
एनर्जी तो नहीं होगा, एनर्जी तो हमने करा है, मूवमेंट पावर भी नहीं होगा। अब चलो ये हमारा पूरा कंप्लीट है। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए भी है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, म्यूजिकल्स टू सी बाई वी, एल बाई टी डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है मैंने यहाँ पे पूरा करके रखा है फुल प्रोसेस, दैट इज F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। उसको आप कर सकते हो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम एम। तो इसको अगर आप करोगे तो होगा m टू द पावर -1 L क्यूब टू द पावर -2। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का बहुत ज्यादा पूछता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का सबसे ज्यादा पूछता है, तो आप कर सकते हैं U इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A बाई F टू T टू द पावर -1 टू M L स्क्वायर टू द पावर -2। तो हो जाएगा m L स्क्वायर 1 -1। अब देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एंगल और सॉलिड एंगल हैव नो डायमेंशंस, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव नो डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब चलो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये हो क्या चीज है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। Principle of homogeneity of dimension. What is the principle of homogeneity of dimension? Homo. What is mean by homo? Homo is mean by what? Homo is mean by same. So the dimension of each term of an equation, the dimension of each term of an equation must be same. उसका जो डायमेंशन होगा each term का, एक पार्ट है, मान लो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे नीचे दिखा है, चलो उसको और एक बार कर लेते हैं। यू टी क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मींस L बाई टी इंटू टी से टी का मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा तो L बचेगा ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर का ए टी स्क्वायर का देखते चलो। एक्सीलरेशन क्या है? L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू उसका जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर मल्टी कैंसिल आउट, तो एल बचेगा। तो दोनों के डायमेंशन सेम हुए। तो और एक बार पहले से सुन लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। वी कैन एड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या बोला गया है? a और b को फाइंड करना है। यहाँ पे v रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एंड t रिप्रेजेंटिंग टाइम। सो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों है जो टर्म है, तीनों को हम एक साइड में लाके जीरो कर दिए। तो क्या होगा? a इज इक्वल टू एल टू द पावर -1, तो b इंटू टी आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो b का डायमेंशन क्या आ गया? a का डायमेंशन तो पता चला ना, a का डायमेंशन तो हो गया, ये तो सिंगल है। और क्या बोला गया? t, तो b क्या होगा? l टू द पावर -2, ये भी हो गया। चलो उसके बाद ये तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? a बाई बी इन p, p इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर बाई बी एक्स। तो p माइनस इसको आप जीरो कर सकते हो, इसको इधर लाके, तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो डायमेंशन ऑफ दिस a इज इक्वल टू d ऑफ t। तो p यहाँ पे प्रेशर बोल रहा है, t टाइम बोल रहा है, s इज द डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। तो डायमेंशन ऑफ दिस वी कैन फाइंड दिस बाय यूजिंग डू दैट एंड दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू l स्क्वायर एंड फॉर दिस सो b इज इक्वल टू m टू द पावर माइनस कैंसिल आउट एंड a बाई बी इज, सो a का हमने पहले निकाला t स्क्वायर, a बाई बी कर दो, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कर दो, तो हो जाएगा आपके पास m l टू द पावर -2। ये आपका पास हो गया। अब चलते हैं, देखो अब चलते हैं किसके बारे में? नाउ वी विल रीड अबाउट द एरर एनालिसिस। व्हाट आर द एरर्स? एरर का मतलब क्या है? गलतियां। यस, वी विल डू गलतियां। मान लो मेरे पास ये फिर एक स्केल है, ठीक है, ये एक स्केल है। इसको मैं अभी कोई भी एक पॉइंट मेजर कर रहा हूँ स्केल से। तो मैं देखो मान लो ऐसे करके मैं देख रहा हूँ, ऐसे करके भी मैं देख सकता हूँ, ऐसे करके भी मैं
स्केल को देख सकता हो, तो वहां पे हम जितना भी ट्राई कर ले लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ एरर बच जाता है। मान लो हमने एक स्टील का स्केल लिया, उसको हीट दिया, तो उसके अंदर लेंथ में कोई भी एक चेंज आया या फिर वो सिकुड़ गया, ठीक है, तो अब वहां पे लेंथ का चेंज आ रहा है। तो हाउएवर वी ट्राई, हम जितना भी कोशिश कर सकते हैं, देयर हैव ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस, ओके, ऑफ द क्वांटिटी, व्हाइल गिव बर्थ टू एरर। वहां पे क्या होता है, एरर का जन्म होता है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेन वैल्यू ऑल्सो द एक्चुअल वैल्यू or the measured value of the quantity is known as absolute error. To find the error, we can do that absolute error minus the measured value. What is the absolute value of, not this absolute error, this is absolute value. Absolute value minus the measured value. उसका जो ओरिजिनल लेंथ है माइनस जो हम लेंथ नापते हैं वो जो मेजर्ड लेंथ है. To find the main value, to measure 5 to 4 times to find the main value. मान लो एक पॉइंट, एक मुझे लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, एक ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, ऐसे एक लाइन में ऐसे ड्रॉ किया. अब देख उस लाइन को मैंने जो ड्रॉ किया, अब उसको मैं 4-5 बार चेक करूंगा. जो भी लेंथ आएगा उसको मैं ऐसे फ्लो चार्ट में रखूंगा, डिवाइडेड बाय मैंने कितनी बार उसको मेजर किया है. सो हम क्या लिखेंगे, x1 मतलब उसका जो पहला बार लेंथ था, दूसरा बार डॉट 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 xn तक करेंगे हम जितनी बार करना है, डिवाइडेड बाय द जितनी बार हम करे हैं, जितनी बार मेजर करे हैं, बाय n. अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर नथिंग बट x डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1. उस पहले वाले के साथ मेन वैल्यू का जो डिफरेंस है वही होगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. आप जितनी बार मेजर करोगे तो आप उसका जो एब्सोल्यूट एरर ऐसे करके आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो डेल्टा x1 डेल्टा x2 हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, डेल्टा x1. अब चलो मेन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करा जाता है, डेल्टा x फॉर्मूलेज, डेल्टा x इज इक्वल्स टू x1 मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2. ये एरर, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, x3 डॉट 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 n डिवाइडेड बाय n. अब रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू xr इज इक्वल्स टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x. ये है मेन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू. अब परसेंटेज एरर जो उसका रिलेटिव एरर निकला इनटू 100, रिलेटिव एरर जो निकला था इनटू 100, वो हो जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर. चलो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंस मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड. मान लो मेरे पास एक रॉड है, इसको मैंने पहला मेजर किया, मान लो ये एक रॉड है, इसको मैंने पहले मेजर किया 4.2 सेंटीमीटर, बाद में करा 4.5, उसके बाद 4.3, 4.4 एंड 4.6 इन सेंटीमीटर. अब कैलकुलेट मेन वैल्यू, उसका मेन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है. अब मेन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है, एरर मतलब रिलेटिव वैल्यू, मतलब रिलेटिव उसका जो एरर है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करने हैं. तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस. यस, फॉर्मूला पुट कर देंगे. मेन वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, मेन वैल्यू का फॉर्मूला है, सबको ऐड कर दो 4.4, एवरेज कर दो, मान लो 4.5 प्लस 4.4, 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6, ये मैंने पहले ही करके रखा है, डिवाइडेड बाय 5, तो हो जाएगा 4.4. सो आपका जो मेन वैल्यू आता है दैट इज 4.4. अब एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डेल्टा x1 पहले मेन वैल्यू के साथ माइनस जो x1 का वैल्यू है वो माइनस कर देंगे पहले, तो ये बच जाएगा 0.2 सेंटीमीटर. उसके बाद आप कर सकते हो डेल्टा x2, आप ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये निकल जाएगा लास्ट में ऐसे. अब आता है मेन एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद. अब मेन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो हमने एब्सोल्यूट एरर, हमने देखो मेन एब्सोल्यूट एरर क्या बोला था, ये डिवाइडेड बाय n, तो मॉड कर देंगे तो आ जाएगा. देखो जो जीरो है ऐसे करके हम एब्सोल्यूट एरर डिवाइड एब्सोल्यूट को प्लस करके जितने भी बार करें हम कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा जो है, देखो ऐसे करके हमने ऐड कर लिया एब्सोल्यूट एरर को, जैसे एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे निकला था, इसको हम अब क्या कर देंगे 5 से, बिकॉज 5 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.6, आप ऐड करके देख लो 5, तो बचेगा 0.1. डेल्टा x का वैल्यू जो मेन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू है वो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.1. अब रिलेटिव एरर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मेन वैल्यू यहाँ पे जो निकला, ये कौन सा निकला, मेन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय रियल, तो हो जाएगा 1/44.
आप परसेंटेज एरर तब कर सकते हो 1/44 इंटू 100, बिकॉज मैंने बोला रिलेटिव एरर इंटू 100 कर दो तो वो भी आ जाएगा। तो क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई 11, तो आ जाएगा समथिंग ऑफ 2.272%। ओके, ये हो गया। अब प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में जानते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या है? एडिशन जानते हैं, एरर का एडिशन हो सकता है, एरर का सब्सट्रैक्शन हो सकता है। सॉरी दैट इज एरर। ओके, ये आ रहा है, ये उठा नहीं है। चलो, एरर सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। करे तो और क्या? एडिशन ऑफ एरर क्या कर सकते हैं? अगर मान लो x इज इक्वल टू a प्लस बी दिया है, तो ये है नॉर्मल वैल्यू, मेन वैल्यू। चलो, अब डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो रिजल्ट कैसे आएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x। यहाँ से तो डेल्टा x निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, तो x प्लस माइनस डेल्टा x कर देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 3 प्लस माइनस 0.3 और 2 प्लस माइनस 0.2, इन दोनों का क्या करना है? आपको एडिशन करना है। तो आप क्या करोगे? 3 प्लस 2 कर दोगे, 3 प्लस 2 कर दो, क्या 5 हो जाएगा ना? ये तो x का वैल्यू निकल गया। अब डेल्टा x का वैल्यू कैसे आएगा? डेल्टा x इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा a का वैल्यू 0.3 प्लस 0.2 क्या कर दोगे? 0.5 कर दोगे। ये सुनो, चलो 0.5 कर दोगे। तो अब देखो दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आएगा? बोला गया है x प्लस माइनस डेल्टा x। तो आप कर सकते हो क्या? यस, तो कर सकते हो। दैट इज 2, बोला है 2 2 2 2 तो 5 प्लस माइनस 0.5, ये तो आ जाएगा ना? हाँ, तो ये पर 0.5 जो है वो एरर है। चलो, यहाँ पे बाकी चीजें सारे लिखे है, कोई बात नहीं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एरर को आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते, कभी भी माइनस नहीं कर सकते। तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू, अगर आप बोथ करोगे x इज इक्वल टू a माइनस b करोगे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जहाँ पे ये मैक्स है डेल्टा b। अब देखो 3 प्लस माइनस 0.3, तो इसका जो माइनस कर दोगे तो आप ऐसे प्लस, यहाँ पे प्लस करके ये माइनस कर दो, तो क्या होगा? दोनों को जोड़ के ऐसे माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 1.1, ये एरर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? एक रेजिस्टेंस R1 या R2, R1 के वैल्यू गिवन है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, दिख रहा है ना? हाँ, सीरीज में है। चलो, तो R1 का वैल्यू जो गिवन है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 का वैल्यू गिवन है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। तो आप क्या कर सकते हो? आप देखो, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2, सो 2 प्लस 2, ये तो R इक्विवेलेंट, डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 0.6। अब तो R क्या आ जाएगा? टोटल R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 6 प्लस माइनस 0.6 आ जाएगा ना वो। तो ये आपका आंसर आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? देखो, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत पेन का। ये चलो, डेल्टा x में क्या होगा, या मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? x इज इक्वल टू ab। मल्टीप्लिकेशन का क्या करते क्या है? मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है ना? मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे ही करते हैं, x इज इक्वल टू कर। अब यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला किसका? मल्टीप्लिकेशन का, एरर का मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन का क्या होगा? इसको अगर मॉडिफाई करो तो क्या बचेगा आपके पास? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू x। अब सेम थिंग यहाँ पे डेल्टा x, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा। चलो, अब देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक लेंथ है, एक मैंने यहाँ पे स्क्वायर रखा है ऐसा स्क्वायर, उसका लेंथ दिया है 4 प्लस माइनस 0.4 और उसका ब्रेथ दिया है 2 प्लस माइनस 0.2। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया नॉर्मल में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2, बिकॉज एक्स तो बोला गया ना 4 इंटू 2 ए इंटू बी कर दो, और क्या 4 इंटू 2 कर दो तो 8 आ जाएगा ना, 8 मीटर्स। अब एरर को कैसे कैलकुलेट करें? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.4 डिवाइड बाई 4, बिकॉज बोला गया है डेल्टा ए बाई ए, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1.6। आप बोथ जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? एरिया 8 प्लस 1.6 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। तो आ गया। अब वॉल्यूम डेंसिटी पूछा गया है, एक हमारे पास ऐसा क्यूब है, इसके अंदर मास है इतना, वॉल्यूम, तो फाइंड द डेंसिटी बोला गया, रो को फाइंड करना है। चलो, तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम होता है। तो गिवन क्या है? मास क्या है? 6 है, 6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है? 2, तो क्या होगा? 3 kg मीटर, kg पर मीटर क्यूब हो गया। अब एरर्स को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? ये आएगा ना, x का वैल्यू तो हमें पता है 3 है,
तो यहाँ पे भी हमें x का वैल्यू पता था 8 था, तो यहाँ पे भी कर दो सेम, तो 0.545 आएगा केजी मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास ये आ गया प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 0.45 केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन में पूछता है, ये नीट में थोड़ा बहुत पूछते हैं, क्वांटिटीज राइज सम पावर, अगर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे कुछ पावर है तो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा एक्स। एक्स के लिए अगर एक्स है कुछ है a का पावर p, b का पावर q बाय c का पावर r, तो फॉर दिस डेल्टा एक्स का पावर जो है, डेल्टा एक्स का पावर ये डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा, तो ये होगा ये जो पावर्स है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ a के साथ ऐसे c का पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आता है। अब इसको अगर परसेंटेज करोगे तो सबके साथ इंटू 100 100 100 100 कर दोगे तो हो जाएगा यस। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं और भी दो क्वेश्चन है, चलो इस पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया है कि द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ करना है आपको। आप कैसे करोगे, 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ हो गया ना, तो यही तो c है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, यही तो c है, पता है तो हम क्यों, c है ये, तो अगर c है तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब ये एकदम सिंपल चीज, ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड। हाँ तो स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड ही है ना, उसका डायमेंशन तो थोड़ा ही ना पलट जाएगा, तो यही होगा इसका आंसर है L बाई टी होगा, स्पीड बिकॉज लेंथ बाई टाइम ये स्पीड होता है। तो चलो हम कर देते हैं, तो ये वाला आपका राइट आंसर। So which of the following that has the dimension of pressure? अब प्रेशर का डायमेंशन कौन सा, ये 1994 में पूछा गया है और ये 2011 और 2012 में पूछा है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, सिर्फ कुछ नहीं, प्रेशर क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये ऑलरेडी इजी क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट एरिया ml⁻² कर दो डिवाइडेड बाय l² कर दो, तो आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा ml-1 क्या हो गया, ये सी वाला, ये सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है मैंने गलती से ऐसे, ये वाला सी वाला है राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2000 समथिंग में पूछा गया है। अब इसको क्या पे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occurred in the measured of P, Q, A, B, C and D are 1%, 2%, 3%, 4%. A, B, C, D का मेजर्ड वैल्यू क्या बोला गया है, 1%, 2%, 3%. फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इस मेजरमेंट के अंदर क्या होगा, तो हम कर सकते हैं एक्स मैक्सिमम हमें निकालना है तो पावर को ऐड कर दो, सबके अंदर पावर है ना, तो बोला गया ये 1 बाई, चलो a का पावर है 2, यहाँ पे गिवन है, चलो a का पावर 2 है, b का पावर हाफ है, इक्वेशन c का पावर 1/3 है, d का पावर क्यूब है, तो आप इसको कर लो, देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स इज इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2, इसका पावर 2 है, तो क्या कर दोगे 2 इंटू इसका जो वैल्यू है ये कर दोगे, इसका वैल्यू क्या है, इसका डेल्टा a बाई a का वैल्यू है आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 1 तो इंटू 100 तो कर दोगे तो ये भी हो जाएगा, इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 इंटू 4 + 12, तो 2 + 1 + 1 + 12 दैट इज 16%। आप कुछ ऑप्शन देखते ना, चलो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो थैंक यू, दिस इज द सिंगल शॉर्ट वीडियो ऑन unit measurement or unit dimensions. If are you liking the video then please share to friends and don't forget to subscribe the channel, and अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर करें, and thank you, bye bye, take care yourself, stay motivated and thank you for watching this.